study well. And okay, so if you have any doubt, you can ask now. So Rahul Kumar. Good morning, ma'am. Good morning, Rahul. Ma'am, actually, module 1 mechanics had not been yet started. Mechanics not yet started? No, ma'am. Nahi. Today I have talked to Verma sir. He told me he has completed harmonic oscillator, damped harmonic oscillator, and I think Only that part, yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. I thought that waves is in this more. Okay. Yes, No. then Have you physics syllabus? Do you have physics syllabus? yes, ma'am. So read that. The module 1 is mechanics, Yes, ma'am. second is optics, third is vector calculus. Okay. So now Kundan Kumar. Good morning, ma'am. Good morning, Kundan. Ma'am, from your portion, we will get questions from superposition, interference, and interference from thin film. Is that right? Yes. Okay, ma'am. Today we will start Newton's ring. मैम तो न्यूटन्स रिंग भी होगा क्या क्वेश्चंस में? ओके मैम, थैंक यू मैम. कुमार अनमोल. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, गुड मॉर्निंग अनमोल. मैम बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल भी आएगा क्या एग्जाम में? न्यूमेरिकल पोर्शन? हाँ. ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल हो सकते हैं. ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल मैम, और फिल इन द ब्लैंक्स में मैम? फिल इन द ब्लैंक्स में भी न्यूमेरिकल हो सकता है. ओके मैम. निखिल कुमार रॉय. Then what will be the timing of examination? वो सब घनश्याम सर बताएंगे. I have told you ना कि घनश्याम सर डिसाइड करेंगे डेट टाइम वो सब. Okay, ma'am. Will classes be scheduled during the examination? नहीं. Okay, ma'am. Classes will be suspended. Okay, thank you. अभिषेक शुक्ला. अभिषेक शुक्ला. कमलेश विश्वकर्मा. Good morning, ma'am. हाँ, good morning, कमलेश. What will the Sorry. What will be the total duration of examination? 1.5 hours. 1 घंटा और आधा घंटा. Hello, ma'am. I am Abhishek. हाँ, अभिषेक. Ma'am, in module 2, only 3 to 4 parts are taught: diffraction and polarization. डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तो स्टार्ट ही नहीं किया. हाँ, तो मैम वो सब आएगा, पोलराइजेशन ये सब जो मॉड्यूल 2 में भी जो पढ़ा चुके वही आएगा. हाँ, जो मॉड्यूल 2 पूरा नहीं आएगा, जो पढ़ा चुके उतना ही तक आएगा. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए. अभी तो हम यही तो बता रहे हैं, जितना पढ़ाया उसमें से आएगा. हाँ नहीं, आप बोले ना मॉड्यूल 2 आएगा, फिर एक मॉड्यूल तो हम यही तो बोले ना कि मॉड्यूल 2 में से जो पढ़ाया वो आएगा, मॉड्यूल 1 में से जो पढ़ाया वो आएगा. ओके मैम. सिद्धार्थ शर्मा. अच्छा मैम, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाइक नोट्स इनफ होगा कि या फिर उसके अलावा हमें कुछ बुक्स प्रीफर करना पड़ेगा पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली बुक्स से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है. मैम बट कौन सा बुक्स? हम लोग ऐसे कुछ बुक्स तो बताया भी नहीं अभी तक. और सिलेबस है ना, जो सिलेबस के एंड में लिखी हुई है बुक्स. ओके मैम. हाँ, तो वही है रेफरेंस बुक्स. ओके मैम. और मैम नोट्स में मतलब कंप्लीटली नहीं है सब कुछ नोट्स में जो मिला है हम लोग को नोट्स में भी है, पर बुक्स से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ज्यादा मिलेंगे. नोट्स तो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, बुक में जो लिखा है उसका थोड़ा शॉर्ट करके होता है. ओके, थैंक यू मैम.
Sumit Kumar. Ma'am, I have cleared my doubt. अच्छा. Thank you. नितेश कुमार. आप लोग खुद को अनम्यूट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो गया तो हैंड भी लो Hello. कर लीजिए और अनम्यूट कर लो. इंद्रानी पाल. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग इंद्रानी. Ma'am, I was asking that where have you provided the notes? Like there are so many PDFs floating here and there, I can't find it. हाँ, so those are the notes only. So those are the notes. Okay. Thank you, ma'am. Ma'am, it would be very much easier if you could put the post the notes in Google Classroom itself. Yes, ma'am. I It think would so. be easier for us. Google Classroom, only Ghanshyam sir have access of Google Classroom. Ma'am, you Oh. create your own classroom. But mine will be not paid. All the students will not be able to log in. I mean, there is some limitation for students. I mean, for participants. Ma'am, that might be the issue, but for it would be a rather convenient for us if you could provide in Google Classroom. So, what is the limit of participants There is no limitation, ma'am. in Exactly. Google Classroom? Yes, ma'am. There is no limitation. You provide us the login code ma'am, and we in can fact, join. in chemistry classes and in Ghanshyam sir's physics classes, there are more than 250 participants. But you are total 650 students now in first year. Ma'am, but in chemistry, where the chemistry classes, all the branches study the subject chemistry. So it would we could guess that there maybe or there should be all the participants. Okay, so No, CS and IT don't study chemistry. Okay. So I will create Google Classroom for you and give you the code. Ma'am, it would be much convenient than giving spreading in different groups or circulating in different WhatsApp groups. Okay, ठीक. Okay. Ma'am, please create it by today itself. After this class, I will create. Thank you, ma'am. And please provide us the code in the WhatsApp group so that we can join easily. Okay. Thank you, ma'am. So I think all doubts are cleared. Now we'll start today's class. Please mute yourself. Sumit and Nitesh Kumar. Now I'm going to start Newton's ring. Newton's ring. So Newton was the scientist. You already know about him. He has given 3 milestone formula of mechanics, related to inertia. So the same scientist also found out the some new phenomena about the interference pattern. So he found out that if there is a thin film of varying thickness, then the interference pattern will be in the form of rings. So those rings are known as Newton's ring. Okay, so first we will draw the setup of Newton's ring. How one can find the Newton's ring, how one can observe the Newton's ring. So what should be the setup? What should be the arrangement?
So for the Newton's ring, the thin film should have variable thickness. Earlier in the last class, we have studied about thin film interference. There the thickness of the thin film was constant. So the thickness was T. In our derivation, thickness was T. And here we will show that the thin film doesn't have a constant thickness. At every point, thickness of the thin film is changing. But the change is also symmetrical. Means change is symmetrical and also there is a constant change. Means if some place change is 0.5, then other place also the change is 0.5. I mean, at one point, the thickness is suppose 0.5 and then it is varying uniformly. Okay. So in this arrangement, Newton's ring arrangement, we have a glass plate. This is a simple glass plate with circular area. This area is circle. This is a glass plate. Now we put a plano-convex lens over this glass plate. You know about the convex lens? If one face of the convex lens is plane, then it is called as plano-convex lens. So, suppose this is the middle point. Okay, I should change the color. Suppose this is the middle point. Then the plano-convex lens will be like this. This is our plano-convex lens. Okay, so at point O, at a single point, they are touching each other. And in between these two, in between glass plate and plano-convex lens, there is an air film. Okay. So here, this is the air film, both sides. So this is our thin film. So at point O, there is no air. Sorry. At point O, the plano-convex lens and glass plate are touching each other, so there is no air. And then as we go towards one side or the other, the width of the air film is increasing uniformly. Okay, and also the path of constant thickness will be a circle. You can understand that? This is the center point, and if thickness of the air film is T here, then at this point also the thickness will be T. At both sides there will be points with same thickness. So these points, the locus of these points of same thickness will create a circle. Do you have any doubt? The locus
of points with same thickness of the film will create a circle. Do you have doubt? This is a glass plate. This is plano-convex lens. Between glass plate and plano-convex lens, we have an air film, and the thickness of the air film is varying. Thickness of the air film is changing, and the locus of the points with same thickness is a circle, forms a circle. So the interference fringes which we produce by this setup will have dark and bright circular fringes. Those fringes are known as Newton's ring. The shape of the fringes will be of ring shape. So those are known as Newton's ring. So we will complete the setup. This is only a part of it. So glass plate, plano-convex lens. Now, suppose these are the rays. I will make the rays with red. Okay. And here is a source, monochromatic source, and here we have a convex lens. So these three rays are incident over the plano-convex lens. And here we have a glass plate inclined at angle 45 degree. I will make this glass plate with different color. This is a glass plate inclined at angle 45 degrees. So these rays will incident over the glass plate. This angle is 45 degrees. This is a glass plate. And here we have a
Here we have a moving microscope. Traveling microscope. So this is the source S, convex lens. This is the convex lens. L1. This is plano-convex lens L, glass plate P, and this glass plate inclined at 45 degree is G, and this traveling microscope M. So this is the setup for Newton's. Now, rays are coming from the source S, traveling towards, after this convex lens, all the ray will be in parallel direction. Means if S is at the focus point of the convex lens, so after passing through the convex lens, they will be in the parallel direction, and they will incident on this glass plate inclined at angle 45 degree. After this incidence, they will reflect towards the plano-convex lens and glass plate setup. So after this incidence, they will reflect to this direction. And then at point this, suppose this is the point F, at point F, and this point at this point, part of the ray will reflect back. Okay, so here is the thin film. So part of the light ray will reflect back at the upper edge, at the upper surface of the thin film. And part of the ray will transmit. Part of the ray will go in this direction. Here you should take care that all the incidence is in normal direction. In the last topic, there was some angle R, that is the angle of reflection. Then angle of incidence was also there, angle of incidence, angle of refraction, and the transmission will be same as incidence I. So here there is a normal incidence. So here R will be 0. Okay. So the ray will go in the same direction, and at the lower part of the thin film, and the lower part of the thin film, again the ray will reflect back. Okay, and some of the ray will transmit. This is the same phenomena, same thing which we have learnt earlier in our thin film experiment. Okay, so part of the ray will reflect back, part of it will refract, and part of the ray will transmit. So there will also be interference in reflected rays and transmitted rays, both. Okay, so like in thin film experiment, we have interference fringes due to reflected light and due to transmitted light. And also we get the same result, both are complementary to each other. The place where we get dark fringe in transmitted light will have a dark fringe in reflected light. Means those are complementary. This shows the conservation of energy. So energy just transfer from one place to another place. Excuse me.
हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठीक ठीक, ओके। तो ये न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, ग्लास प्लेट, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो दोनों तरफ से यूं होता है और उसका एक सरफेस अगर प्लेन हो जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ग्लास प्लेट हो गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका ग्लास प्लेट, दूसरा ग्लास प्लेट है जिसे 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। ये हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है L1। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स अगर कॉन्वेक्स लेंस L1 की फोकस पर रखा हुआ, फोकस F, तो क्या होगा, लेंस से निकलने के बाद लाइट पैरेलल हो जाएगी। ये तो हमने पढ़ा है 11th-12th में। ये सारी रेस पैरेलल हो गई, फिर इससे टकरा के, ग्लास प्लेट से टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके नीचे जाएगी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट का जो अरेंजमेंट बना रखा है हमने उसकी तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में थिन फिल्म है, हवा की थिन फिल्म है, एयर फिल्म है। तो एयर फिल्म का एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। ये ऊपर का पार्ट जैसे पॉइंट F है, इधर भी है, यहाँ पे तो एयर फिल्म है नहीं, बीच में तो बिल्कुल टच कर रही है दोनों चीजें, तो एयर फिल्म कुछ है नहीं बीच में। अब देखो क्या होता है, रे आई, नॉर्मल इंसिडेंस है रे का, रे बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे। ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना देना इसके साथ, इस प्लेन के साथ। तो जैसे हमने थिन फिल्म में पढ़ा था, वहां एक इंसिडेंस एंगल था, फिर रिफ्रैक्शन का एंगल था। इंसिडेंस एंगल को हमने आई लिखा था, रिफ्रैक्शन एंगल को आर लिखा था। तो आई इंसिडेंस एंगल था क्योंकि जो हमारी रेज आ रही थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो ऐसे थी इंक्लाइंड, तो इंक्लाइनेशन एंगल आई हो गया। अब यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या हुआ, 0। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। ये पूरा सीधा सीधा एंगल चला जाएगा और सीधा सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पर भी जो फिल्म बन रही है ना, उसकी ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और फिर ये बची हुई रे, जो भी रे आती है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट अंदर चला जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब रेज का एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है, रेज का एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है, उससे उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अंदर चला गया, फिल्म के अंदर चला गया, फिर बचा फिल्म के अंदर जाके भी रिफ्लेक्ट होगा और बचा हुआ ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे हमने थिन फिल्म में किया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, ये फिल्म थी हमारी थिन फिल्म, T थिकनेस थी, या इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे कुछ पार्ट यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट अंदर चला गया, फिर इस अंदर में से बचा हुआ वापस रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट हो गया, ऐसे था ना। तो ये यहां से, यहाँ इंसिडेंट है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, बचा हुआ रिफ्रैक्ट हो गया, मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाना या पास चले जाना, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिपेंड करेगा कि ये जो थिन फिल्म है उसकी डेंसिटी एयर डेंसिटी से ज्यादा है कम है जो भी, तो ये रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे फिर से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट, बचा हुआ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, यहाँ पर भी थिन फिल्म है हवा की, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो हमने F बनाया है वो यही पॉइंट है F। तो इस पॉइंट पे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया
टकरा के वापस चला गया कुछ पार्ट, कुछ इस फिल्म के अंदर चला गया, ये फिल्म के अंदर चला गया, अंदर जाके भी इस पॉइंट पे फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, अब ये फिर से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो गया, फिर बचा हुआ इधर जाता है और ये बचा हुआ इधर गया। मतलब इस तरह रे, एक ही रे है वो बार बार इधर उधर टकरा टकरा के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो ये सारी जो रे होती है R1 R2 ये सब रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, और ये जो इधर होती है T1 T2 ये सारी ट्रांसमिटेड है। तो रिफ्लेक्टेड रेज है उनमें भी इंटरफेरेंस होता है और ट्रांसमिटेड रेज जो भी होगी उनमें भी इंटरफेरेंस होगा। तो इधर भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी रिफ्लेक्टेड रेज के कारण और इधर भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी ट्रांसमिटेड रेज के कारण। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग में भी ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रेज बनेगी और ट्रांसमिटेड रेज बनेगी और उनमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो थिकनेस थी फिल्म की वो कांस्टेंट थी, एक ही थिकनेस की फिल्म थी, और यहाँ पे जो थिकनेस है फिल्म की मोटाई है वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, आया समझ में? अभी जिसको डाउट है वो सिर्फ अपना हाथ ऊपर करेंगे, बाकी लो कर दीजिए प्लीज। सो साहित्य, साहित्य सुमन। हेलो मैम, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों लिए हम लोग? ट्रैवलिंग, हाँ वो इसलिए ये है कि यहाँ पे जैसे रिंग बनेगी ना, जैसे यस यहाँ बीच में जैसे डार्क बन गई, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर तो अब जैसे बीच में देखना है तो ये माइक्रोस्कोप को मिड में रखेंगे। फिर हमें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें मान लो इस इधर पे यहाँ पे कुछ मेजर करना है, इतना डायमीटर या रेडियस मेजर करना है, तो माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इस साइड ले जाएंगे ताकि ये हमें अच्छे से फोकस होके दिखाई दे। ठीक है, जैसे यहाँ की जैसे जैसे दूर जाके जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे फिल्म बनेगी, बीच की डार्क बन गई, फिर ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट डार्क, तो ये माइक्रोस्कोप को हम इधर उधर ले जा सकते हैं। यस मैम, यस मैम। कुमार अनमोल। हेलो मैम। हाँ कुमार मैम, इसमें जैसे बता रहे मैम, ये मैम रिफ्लेक्ट कर रहा है ना मैम इसमें? हाँ ये मैम, ये नीचे वाला ग्लास, ये ग्लास प्लेट से मैम। हाँ, तो मैम ये ट्रांसमिट मैम कर रहा है, वो रे कैसे होगा मैम? ये जो जैसे यहाँ पे करता है ना, थिन फिल्म में हमने पढ़ा था, यस मैम। तो वैसे ही होगा। अब ये गई, इस पॉइंट से भी थोड़ा, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाता है, और बचा हुआ ट्रांसमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऐसी बचा हुआ ट्रांसमिट हो जाएगा। मैम वो एयर फिल्म का कोई डेंसिटी है क्या मैम? क्या, वापस बोलो मैम, एयर फिल्म का कोई डेंसिटी है क्या? वापस बोलो। मैम, एयर फिल्म का कोई डेंसिटी है? एयर फिल्म, यस मैम। एयर फिल्म का कोई डेंसिटी, एयर की डेंसिटी के इक्वल होगा बस। तो मैं उसमें ट्रांसमिट कैसे करेगा मैम? वो तो मैम सीधा, मैम वो तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा मैम, नॉर्मल मैम जाएगा ना? ग्लास प्लेट में चला जाएगा, जैसे ग्लास प्लेट से फिर वापस एयर में आ गया। तो मैम वहाँ पे कन्वेक्स लेंस देने का जरूरत क्यों था मैम? वहाँ पे मैम एक तो प्लेन मिरर भी तो दे सकते थे। क्या, वापस बोलो। मैम वहाँ पे तब मैम ये ग्लास, मैम ये ग्लास प्लेट देने का क्या जरूरत है मैम? वहाँ पे तो एक मैम ये मिरर भी तो दे सकते थे मैम, और वो लेंस हटा देते। अच्छा, लेंस की जगह तुम बोल रहे हो कि कोई ग्लास रख देते? यस मैम, ये जैसे मैम ये लेंस प्लस ये ग्लास प्लेट है ना मैम, हाँ, तो उसके जगह मैम एक मिरर रख देते तो मैम क्या होता? मिरर रख देते तो मिरर के ऊपर तो क्या होता है मैम? वो रिफ्लेक्ट करता है ना मैम परपेंडिकुलर, वहाँ पे मैम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में दिखाता है ना मैम। हाँ,
तो मैम पर उससे मिरर फिर में तो कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना होता है ना, ग्लास प्लेट तो सिंपल ग्लास प्लेट ही है, मिरर में तो आपको कुछ कोटिंग करनी होती है ना, सिल्वर कोटिंग, फिर वो Yes, ma'am. रिफ्लेक्ट करेगा, फिर मिरर में तो डिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। मिरर में मैम डिफ्रैक्शन नहीं ना होगा मैम। मिरर का ऊपर कोटिंग होती है ना, सिल्वर Yes, ma'am. कोटिंग, यस मैम। तो उसके कारण तो कुछ और भी फर्क पड़ेगा ना, वो मैम वो तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा ना। सिर्फ सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ट्रांसमिट नहीं करेगी ना। यस मैम। हाँ तो मैम ये लेंस जो लिए मैम, इसके बीच में मैम एयर फिल्म है मैम, इसका यूज क्या हुआ मैम? मैम ये लिए क्यों है मैम? ये मतलब हम ये स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है? यस मैम। हाँ, एप्लीकेशन ये है कि अगर न्यूटन रिंग परफेक्ट बन रही है, परफेक्ट गोल है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो ग्लास प्लेट है या कॉन्वेक्स लेंस जो है, वो जिस तरह का हम बनाना चाह रहे हैं उसका सरफेस स्मूथ है, उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, ये पता कर सकते हैं। ओके मैम, समझ में आ गया ना? ठीक है मैम। मान लो ये बिल्कुल प्लेन ना हो, कहीं पे इसका मोटा है कहीं पतला है, तो जो एयर फिल्म बनेगी उसकी थिकनेस भी उसकी तरह वेरी करेगी। फिर अब एयर Yes, फिल्म ma'am. की थिकनेस वेरी करेगी तो हमारा न्यूटन रिंग है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। मैम यहाँ मैम थिकनेस से मैम क्या मतलब इसमें डिफरेंस हो रहा है मैम? मैम अगर थिकनेस मैम कांस्टेंट रहता तो क्या होता? क्या वापस बोलो? मैम अगर थिकनेस वहाँ पे कांस्टेंट रहता तो मैम क्या होता? मैम यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं ना आपकी यहाँ पे थिकनेस वेरी कर रहा है, हाँ, मैम वहाँ पे थिकनेस अगर कांस्टेंट रहता तो क्या होता मैम? कांस्टेंट से तो हमने जो पहले स्टडी किया था ना, जस्ट पिछले लेक्चर में, तो तो मैम उसमें इसमें मैम रिफ्लेक्ट नहीं ना करता कुछ मैम? ये तो मैम डायरेक्ट मैम स्लाइड से पास कर जाता ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बना रहा है ना मैम। हाँ, डायरेक्ट पास कर जाता, रिफ्लेक्ट भी करता, क्योंकि ये यहाँ डेंसिटी चेंज हो रही है ना, तो रिफ्लेक्ट भी करता, बचा हुआ पास कर जाता। तो मैम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में मैम सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगा? नहीं, दोनों, उसको नीचे की तरफ लगाएंगे तो ट्रांसमिटेड का भी दिखाई देगा। ओ ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है? ये अरेंजमेंट में तो किसी को डाउट है नहीं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। हाँ, व्हाइट सोर्स से भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम आगे पढ़ेंगे व्हाइट सोर्स से क्या चेंजेस आएंगे ना, व्हाइट सोर्स यूज किया तो। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइक सोडियम सोर्स यूज करेंगे। सोडियम की लाइट का कलर कैसा होता है? येलो, है ना? तो फ्रिंजेस जो बनेंगे वो येलो कलर की होगी, ब्राइट फ्रिंज येलो कलर की होगी और डार्क फ्रिंज बिल्कुल डार्क होगी, है ना, ब्लैक। अब जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमने थिन फिल्म ऑलरेडी स्टडी कर रखी है कांस्टेंट थिकनेस की, तो वही सारे फॉर्मूलाज यहाँ अप्लाई करेंगे, बस थिकनेस यहाँ वेरी कर रहा है, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट्स, रिफ्लेक्टेड रेज जो होगी, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है? थिन फिल्म में हमने स्टडी किया था, पाथ डिफरेंस था 2 म्यू टी कोस r माइनस λ/2। और λ/2 क्यों आता है? क्योंकि एक रे तो एयर टू एयर रिफ्लेक्ट कर जाती है और दूसरी रे है वो
थिन फिल्म टू एयर रिफ्लेक्ट करती है, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है, दैट इज ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तो हमें डिराइव तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इफ देयर इज ए फिल्म ऑफ थिकनेस टी। हाँ, अब ये टी की बात करें, थिकनेस तो यहाँ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फिल्म बन रही है उसकी थिकनेस अलग अलग जगह अलग अलग है, और जो सेम थिकनेस के पॉइंट्स हैं, सेम थिकनेस के पॉइंट्स हैं, वो एक सर्कल बनाते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या कि सेम थिकनेस के पॉइंट्स जो है वो एक सर्कल बनाते हैं? सेम थिकनेस के पॉइंट का लोकस वो एक सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक सर्कल में जो फ्रिंज बनेगी वो सेम होगी, मतलब वो लोकस पे एक फ्रिंज बन जाएगी, तो वो सर्कुलर फ्रिंज होगी, और उसी को न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो किसी एक थिकनेस के लिए, किसी थिकनेस टी के लिए, या तो थिकनेस हर जगह वेरी करता है, यहाँ पे मान लो T1 है, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे, तो इधर T1, T2, T3 है, तो इस साइड भी होगा T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे। ये पूरा 3D में देखेंगे तो पूरा गोल होगा ना, ये पूरा गोल होगा, तो T1 थिकनेस वाला पूरा गोल बनेगा ऐसा, है ना, तो वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, 3D में तो पूरा गोल दिखेगा ना, ये जो है वो एक बाउल के जैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस बाउल के जैसा होगा 3D में। ठीक है, ऊपर से प्लेन है, तो ये जो यहाँ क्रॉस सेक्शन है, जैसे बाउल का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सेम थिकनेस के पॉइंट्स जो होंगे, सेम थिकनेस के पॉइंट्स का लोकस वो एक सर्कल होगा। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर थिकनेस टी के लिए हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए तुम्हें पता है कि पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, तो यहाँ न्यूटन्स रिंग में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए थिन फिल्म। अब अभी ये एयर की थिन फिल्म है, अब मान लो किसी लिक्विड की थिन फिल्म बनानी हो, मान लो ऑयल की थिन फिल्म बनानी हो, तो क्या करेंगे, ग्लास प्लेट और एयर, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उन दोनों के बीच में 2 ड्रॉप ऑयल के डाल देंगे, तो ये जो फिल्म बन जाएगी वो ऑयल फिल्म होगी, वेज शेप्ड ऑयल फिल्म। ये एयर जो फिल्म है, एयर फिल्म शेप क्या है उसका, वेज है ना, वेरिएबल थिकनेस, वेज शेप एयर फिल्म। अगर कोई लिक्विड डाल देंगे तो वेज शेप लिक्विड फिल्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उस लिक्विड के भी कुछ हम प्रॉपर्टीज का पता कर सकते हैं, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो नाउ वी विल राइट डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस। हम डायरेक्टली पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसको लिखते हैं, if there is a film of thickness T, that the path difference between two reflected light beam, then the path difference between two reflected light beams x is equal to क्या लिखे, 2 म्यू टी कोस r
माइनस λ/2। जैसे थिन फिल्म में था, डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। थिकनेस t की कोई थिन फिल्म है, उससे 2 रिफ्लेक्टेड लाइट बीम हो तो उसके लिए पाथ डिफरेंस ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एयर फिल्म बन रही है, तो 4 एयर फिल्म के लिए म्यू कितना होता है 1, ठीक है। एयर फिल्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर कितना होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो आर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है क्या, आई आर इज 0 है ना, 4 नॉर्मल इंसिडेंस R is equal to 0. So cos R is equal to cos 0 is equal to 1. ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। तो x क्या हो गया, 2 म्यू 2t माइनस λ/2, ठीक है। म्यू इज 1, cos R is 1, so our x is 2t minus λ/2। Thus, the path difference x equal to 2t minus λ/2, ये है path difference for reflected beam। अब क्या करें, सेंटर पॉइंट देखते हैं। सेंटर पॉइंट मींस सेंटर पॉइंट ये O, जहां ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना, जहां ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, पाथ डिफरेंस at center point। सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, अब सेंटर पॉइंट पे एयर फिल्म की थिकनेस कितनी होगी, टी कितना होगा 0, दोनों कांटेक्ट में है, तो एयर तो है ही नहीं बीच में, एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों, लेंस और प्लेट, ग्लास प्लेट दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हवा तो है नहीं बीच में, तो हवा की जो थिकनेस है, फिल्म की थिकनेस है, वो 0 होगी। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, एट सेंटर पॉइंट t इक्वल टू 0, देन पाथ डिफरेंस x will be equal to λ/2 माइनस λ/2 प्लस λ/2 एक ही बराबर है, मतलब λ/2 का पाथ डिफरेंस है। तो λ/2 का पाथ डिफरेंस है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, डार्क फ्रिंज के। वी हैव स्टडीड ना फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, if path difference is equal to n lambda then there will be bright fringe। अगर path difference n lambda की इक्वल है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर पाथ डिफरेंस 2n + 1 λ/2 की इक्वल है ना, मतलब λ/2 का कोई मल्टीपल है 1 3 5 इस तरह ओड नंबर, तो क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो दिस पाथ डिफरेंस, देन पाथ डिफरेंस इज दिस व्हिच corresponds to dark fringe। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है तो उसका सेंटर डार्क होगा, ठीक है। So thus we can say, thus in reflected light beam interference
the center will be dark. ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स में जो इंटरफ्रेंस रिंग्स बनेगी, इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा, उसका सेंटर डार्क होगा. ठीक है, इसमें किसी को डाउट? ओके, तो ये तो सेंटर पॉइंट हो गया. अब हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए देखते हैं पाथ डिफरेंस क्या होता है. वैसे तो हमें पता ही है कंडीशंस क्या है. पाथ डिफरेंस तो हमें पता ही है, डार्क के लिए n लैम्डा होना चाहिए, ब्राइट के लिए n लैम्डा होना चाहिए और डार्क के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वहां हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उन्हीं को हमेशा अप्लाई करेंगे. तो अब नाउ विल राइट कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज. कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज. अब पाथ डिफरेंस को वही लिखते हैं 2t - λ/2. दिस इज इक्वेशन 1 है ना. वी हैव x = 2t - अच्छा x का फॉर्मूला लिख देते हैं. ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, x = n लैम्डा. तो यहाँ पे 2t - λ/2 should be equal to, since x = n lambda for bright fringe, so 2t - n lambda = n lambda. तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, 2t = ये क्या हो गया 2n + 1 λ/2. ठीक है, λ/2 इधर गया, 2n + 1 λ/2. so this is the condition for bright fringe. ठीक है, और n क्या होता है 0 1 2 and so on. ठीक है, इसमें किसी को डाउट? तो ये कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज के लिए. अब सिमिलरली वी विल राइट कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज. कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज. डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस, सिंस x = 2n + 1 λ/2. ये कहां से आया, फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, डायरेक्ट हमने लिख दिया. अब यहाँ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें पाथ डिफरेंस कितना है, 2t - λ/2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए डार्क फ्रिंज के लिए, 2n + 1 λ/2. अब λ/2 इधर चला जाएगा, λ/2 + λ/2 लैम्डा हो गया. और ये 2t कितना है बताओ, लैम्डा n + 1 लैम्डा. ठीक है, n + 1 लैम्डा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n लैम्डा. n यहाँ शुरू होता था 0 से, तो यहाँ m शुरू हो जाएगा 1 से. ठीक है, 2t = m लैम्डा with m = 1 2 3. ठीक है, n 0 से था तो 0 + 1 1 हो गया, फिर 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 2 3. लैम्डा का जो मल्टीपल है वो 1 2 3 4 ऐसे होंगे. तो यहाँ हमने n + 1 को लिख दिया m और m को स्टार्ट कर दिया 1 2 3. तो ये 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज. ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t होता है 2n + 1 λ/2 और डार्क फ्रिंज के लिए 2t होता है m लैम्डा. m स्टार्ट होता है 1 से, n स्टार्ट होता है 0 से. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंडीशंस. नाउ वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यूटन्स रिंग. ठीक है,
रेडियस ऑफ द न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग क्यों बोलते हैं, रिंग कैसे बनती है तो समझ में आ गया ना। या जो भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनेगी वो सेम थिकनेस के पॉइंट का लोकस होगी। डार्क और ब्राइट फ्रिंज विल बी द लोकस ऑफ points with same thickness. So this locus will form a circle. या locus एक सर्कल बनाएगा, तो उस सर्कल को ही बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा कंडीशंस। नाउ रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। अब हम रेडियस और डायमीटर, रेडियस कैलकुलेट करेंगे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के लिए। रेडियस एंड diameter of bright and dark fringes. तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाए कैसे, सपोज ये हमारा बोलने वाली प्लेट है, ठीक है, नीचे जो थी प्लेन ग्लास प्लेट, और अब जो लेंस रखा है ना कॉन्वेक्स लेंस, पूरा सर्कुलर फॉर्म बना। ठीक है, ये सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल है, ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है O, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। लेंस तो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इतना ही था, इतना था नीचे का पार्ट, ठीक है। अभी हमने इसको पूरा सर्कल बना दिया, इतना था, अभी हमने पूरा सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये मान लो इस सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां जो फिल्म है ना, यहां फिल्म जो है उसकी थिकनेस सपोज करो T है, ठीक है, ये थिकनेस T है, इतना T है, और ये O पॉइंट है, ये हम ऐसे पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट्स Q N, और इसको लिखते हैं Q प्राइम, ठीक है, और S N, यहाँ S लिखते हैं और ये N हो गया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? ये जो कोई प्लेट है, ग्लास प्लेट है ना, और ये ऊपर वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, ठीक है। इसको मतलब पूरा एक सर्कल में इमेजिन करें तो इसका जो रेडियस होगा वो R होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और एयर फिल्म जो बन रही है, यहाँ पे इसकी थिकनेस T है, अलग अलग जगह थिकनेस अलग अलग है, तो यहाँ पे जो है वो थिकनेस T है, ठीक है। ये T है तो ये वाला भी T हो गया, ये वाली भी T ही है, ये थिकनेस भी T है, ठीक है। तो अब इस ज्योमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं, QN into NQ प्राइम,
will be equal to ON into NS. ठीक है, ये रूल होता है QN from the geometry of the circle. From the geometry of the circle, QN into NQ prime is equal to SN into NO. ठीक है, तो QN और NQ प्राइम है, ये R है। ये जो सर्कल बना ना लास्ट वाला, ये जो सर्कल बना उसका रेडियस है R। किसी को डाउट इसमें? R क्या है? ये जो T थिकनेस वाली फिल्म है ना, इस पर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस R होगी। ठीक है, तो ये QNR हो गया, QNQ प्राइम भी R है। SN कितना होगा? ये R है, ये R है, 2R हो गया। 2R तो इसका डायमीटर हो गया, 2R माइनस T, ये SN हो गया 2R माइनस T, और NO क्या हो गया? T इंटू T। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? अब क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ये जो लेंस जो होता है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बहुत बड़ा लेते हैं, तो R इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ द फिल्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो ये जो R है वो फिल्म की थिकनेस से बहुत बड़ा है। तो यहाँ R 2R माइनस T है। अब T तो बहुत छोटा है, तो 2R बहुत बड़ा हो गया, तो इस T को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इधर सिर्फ 2R रखेंगे और ये बाहर वाला T है, तो 2RT हो गया। तो ये देन वी हैव R स्क्वायर, इधर R स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT। ठीक है, अब ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, R स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT। ये फॉर्मूला यहां देखिए, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये था पाथ डिफरेंस का, 2t माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, सेकंड आ गया कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये सेकंड है। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज 2t इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। याद रखना है, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज 2t इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। फिर कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज 2t इक्वल टू m लैम्डा। तो अब ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, R स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT। तो वो फॉर्मूला कौन सा था? इसको हमने सेकंड बोला, इसको थर्ड बोल देंगे, और वो जो होगा ये फोर्थ हो गया। अब हम रेडियस निकालेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए रेडियस निकालना है, तो 2t को रिप्लेस करेंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो रेडियस फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज 2t इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां इसको पुट करेंगे,
तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर तो है ही साथ में ये, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 आर लैम्डा बाई 2, ठीक है। और आर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2n+1 लैम्डा आर बाई 2। तो ये हो गया ब्राइट फ्रिंज। इसको आर को आर एन लिख देते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज, nवें नंबर की ब्राइट फ्रिंज। तो दिस इज द रेडियस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। ये 4 नंबर हो गए, 5 नंबर। डायमीटर क्या होगा इसका डबल है ना, एंड डायमीटर for nth bright fringe। डायमीटर क्या हो जाएगा, 2rn। 2rn इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाएगा 4 में से ये 2 चला गया तो जगह 2n+1 लैम्डा, ठीक है, अंडर रूट 2n+1 लैम्डा आर, ठीक है। तो हो गया nth ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर, n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2। अब सिमिलरली वी कैन derive the formula for diameter of dark fringe। ये तो bright fringe का होगा, for bright fringe। अब dark fringe, ये 5 नंबर है, इसको 6 नंबर करते हैं। डायमीटर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, 2t। कंडीशन क्या थी, 2t इक्वल टू m लैम्डा, वेयर m स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2, ठीक है। तो आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला 2t की जगह ये पुट कर लेंगे m लैम्डा, है ना। 10 देन रेडियस आर स्क्वायर इक्वल्स टू m r लैम्डा, m लैम्डा r, ये r स्क्वायर हो गया m लैम्डा। तो यहाँ r n लिखा था ना, nth ब्राइट फ्रिंज, यहाँ m लिख देते हैं नीचे, mth डार्क फ्रिंज, mv डार्क फ्रिंज। तो rn क्या हो जाएगा, अंडर रूट m लैम्डा r, सिंपल। और डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल कर देते हैं, तो 2 यहां करेंगे, अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4m लैम्डा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं डायमीटर ऑफ द डार्क फ्रिंज डायमीटर dm, डायमीटर ऑफ द mth dark fringe, dm equals to 2rm equals to under root 4m lambda r। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। लैम्डा क्या है, जो भी हमने सोर्स लिया है उससे जो रे निकल रही है उसकी वेवलेंथ। सोडियम लाइट यूज करते हैं, सोडियम रे, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, 6923 एंगस्ट्रॉम। इज इट करेक्ट? मतलब मुझे अभी यही याद है, या तो 69 होता है या 68 होता है, ठीक है। तो इतना लैम्डा होता है येलो लाइट का। और m क्या है, mth है ना। हम काउंट करिए, इससे बीच वाला डार्क स्पॉट है तो वो 0th हो गया,
फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो फर्स्ट, फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज फर्स्ट, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे ना तो ये mth है। m कैन बी एनीथिंग, m कैन बी 1 2 3, ठीक है। m तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और n स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो ये हमने डायमीटर निकाल लिया डार्क फ्रिंज के लिए और ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ निकालेंगे। तो अभी देखो डायमीटर में वेवलेंथ है, ब्राइट फ्रिंज में यहाँ लैम्डा है, डार्क फ्रिंज में भी लैम्डा है, तो डायमीटर को यूज करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और डायमीटर डायरेक्टली आप लोग रीड कर सकते हो, जो ऊपर माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, वेरिएबल माइक्रोस्कोप और ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, उसमें एक स्केल भी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे mth फ्रिंज की तरफ जाएंगे, मतलब फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज, तो जितने भी फ्रिंज है उनका डायमीटर आप स्केल के थ्रू और ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए मेजर कर सकते हो, डायमीटर को नाप सकते हो। तो डायमीटर अगर आप नाप लोगे और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नाप सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस जो गिवन है एक्सपेरिमेंट में, उसको स्फेरोमीटर को यूज करके उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम हेलो, हाँ हाँ बताओ। nth, अच्छा वो nth फ्रिंज का जो फ्रिंज बन रही है ना, हाँ एक मिनट मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ। तो ये जो डायमीटर और रेडियस बने हैं उनको हम समझते हैं किसकी रेडियस है, ये फ्रिंज की रेडियस है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें पता चला कि जो सेंटर स्पॉट होता है वो डार्क होता है, ठीक है। तो अभी जैसे न्यूटन्स रिंग दिखेगा एक्सपेरिमेंट में, वो कैसे दिखेगा, बीच में ये डार्क है, ये सेंटर स्पॉट डार्क हो गया। अब ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट को मैं व्हाइट से शो कर रही हूँ, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज है। फिर डार्क फ्रिंज, ये ब्लैक जो है वो डार्क फ्रिंज है, ठीक है। तो ये पहली ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये पहली डार्क फ्रिंज हो गई, बीच वाला स्पॉट डार्क है, ठीक है। फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज और दूसरी डार्क फ्रिंज, बीच में जो व्हाइट है वो ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, और जो ब्लैक मैंने बनाया है वो डार्क फ्रिंज है। ऐसे थर्ड व्हाइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, फोर्थ व्हाइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, फिफ्थ व्हाइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो वो जो हमारा अरेंजमेंट था ना, ग्लास और ये ग्लास और ये लेंस, इसके बीच में ये फिल्म बन रही है, तो यहाँ पे ऐसे ये गोल गोल दिखाई देती है, बीच में डार्क दिखाई देगा, फिर ये ब्राइट डार्क, ये इसी के ऊपर गोल गोल दिखाई देती है। ऊपर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, यहाँ से देखेंगे तो ये गोल गोल दिखाई देती है। इसी तरह ये 2D में देख रहे हैं हम, ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। आप लोग जब आने लग जाओगे कॉलेज तो ये एक्सपेरिमेंट भी हम कराते हैं फिजिक्स लैब में, तो आप करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो ये तो आपकी जीरो हो गई। अब मान लो m है, m मतलब मान लो 3 है, m is 3, तो थर्ड तीसरी डार्क फ्रिंज की रेडियस वो क्या हो जाएगी, r3, तीसरी डार्क फ्रिंज की रेडियस। तो ये पहली डार्क फ्रिंज है, ये दूसरी, ये तीसरी डार्क फ्रिंज है, ठीक है। तो इसकी ये जो रेडियस है ये हो गई r3, ठीक है। और डायमीटर कौन सा हो गया, ये पूरा, तो ये मतलब यहां से लेके
यहां तक ये D3 होगा। ठीक है, ये पूरा डायमीटर, ये जो तीसरी डार्क फ्रिंज है उसका डायमीटर D3, DM, M को हम 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो M इक्वल टू 3 D3 आ जाएगा, वो होगा √4 इंटू 3 लैम्डा। ठीक है, पहली का निकालना है तो यहाँ D1 हो जाएगा, दूसरी का D2 हो जाएगा, ये D3 हो गया, ये D4 हो जाएगा, इसका D5 होगा, ये जो लास्ट है इसका D5 हो जाएगा, D5, ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये तो डार्क के लिए, ऐसे ब्राइट के लिए, ब्राइट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये मान लो D2 है, तो ये मिड पॉइंट ले लो, ये D2, ये ब्राइट के लिए है ना, ब्राइट, ब्राइट को N से दिखाया ना, DN। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये जो फ्रिंज बनती है न्यूटन रिंग, ये क्या है, न्यूटन रिंग, रिंग रिंग शेप में है ना, ये सारा जो है वो न्यूटन रिंग है। न्यूटन रिंग, तो न्यूटन रिंग का डायमीटर, न्यूटन रिंग में जो डार्क फ्रिंज बनी उसका डायमीटर होता है DM इक्वल टू √4m लैम्डा, और न्यूटन रिंग में जो ब्राइट फ्रिंज बनी उसका डायमीटर होता है DM इक्वल टू √2m + 1 लैम्डा। n स्टार्ट होता है 0 से, m स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, अब D0 कितना आएगा, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 लैम्डा, √2 लैम्डा, तो जो जीरोथ ब्राइट फ्रिंज होगी उसका डायमीटर होगा 2 लैम्डा। ये जो जीरोथ जो सबसे पहले दिखाई दे वो जीरोथ। ठीक है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला यूज करके लैम्डा निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। वेवलेंथ निकालना है, और हमारे पास डायमीटर है डार्क के लिए, डार्क के लिए डायमीटर को यूज करेंगे, फॉर्मूला हम डार्क फ्रिंज के डायमीटर का लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, √4m लैम्डा। अब ब्राइट के लिए क्या होता है ना, 2m + 1 लैम्डा, जैसे ब्रैकेट में भी कुछ आ गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया, तो हम लैम्डा निकाल लें। अब न्यूटन रिंग बनेगी तो उसमें डार्क ब्राइट सारी फ्रिंजेस दिखाई देगी, तो वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, किसी भी फ्रिंज का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, लैम्डा तो एक ही आएगा क्योंकि हमारी जो सोर्स है वो तो एक ही है ना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो एक ही है, तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला डार्क वाला, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है दिखने में। ठीक है, तो अब वेवलेंथ निकालेंगे बाय न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो कैसे निकालेंगे, in Newton's ring experiment one can measure the diameter of mth and m plus pth dark fringe। m और mth और m plus pth dark fringe का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अभी हमने बनाया था, बीच में जो डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये फ्रिंजेस बनी। ठीक है,
अब मान लो ये mth फ्रिंज है, mth डार्क फ्रिंज है, इसको मैं DM लिख देती हूँ, और ये मान लो m+p डार्क फ्रिंज है, लास्ट वाला, तो इसको लिख देती हूँ DM+p। m और m+p समझ में आ गया? यहाँ पे देखो m मतलब कितना होगा, ये तो बीच वाला स्पॉट है, ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे m मतलब 2 हो गया, इसे समझने के लिए लिखते हैं m मतलब 2 हो गया, और p m+p कितना हो गया, 2 तो है ये, 3 4 5, m+p 5 हो गया। तो ये दूसरी डार्क फ्रिंज का डायमीटर है, ये पांचवी डार्क फ्रिंज का डायमीटर है, तो p कितना हो गया, 3 हो गया, है ना, m+p 5, m is 2 तो p is 3 हो गया। समझ में? मतलब dm और dm+p, कोई भी दो फ्रिंज लिया, एक का डायमीटर मान लो dm है, दूसरी का dm+p है, और ये हम नाप लेंगे, ये हम मेजर कर लेंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में स्केल लगा रहता है, तो आप किसी भी फ्रिंज का डायमीटर उससे नाप सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो वी मेजर diameter of mth and m+pth dark fringe। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है √4m लैम्डा r, किसी mth डार्क फ्रिंज का डायमीटर का फॉर्मूला है dm = √4m लैम्डा r। तो अब हम mth और pth के लिए लिखेंगे m+pth, dm = √4m लैम्डा r, और dm स्क्वायर लिख देते हैं जिससे ये स्क्वायर रूट हट जाए, तो ये हो गया 4m लैम्डा r। सिमिलरली dm+p के लिए क्या होगा, dm+p, जहां m था वहां उसकी जगह m+p लिख देंगे, तो √4m+p लैम्डा। ठीक है, और स्क्वायर कर देंगे dm+p स्क्वायर 4m+p लैम्डा। अब एक में से दूसरे को घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन मान लो 7 है, ये 8 है, तो नाउ इक्वेशन 8 - 7, तो क्या होगा, dm+p का होल स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाएंगे 4m लैम्डा, 4m लैम्डा तो 0 हो गया, मतलब घट गया, तो 4p लैम्डा, वी हैव 4 लैम्डा r। ठीक है, p तो क्या है, काउंटिंग है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था p3 हो गया, m3 लिया था, m+p 5 लिया 5, तो p हो गया 2, है ना। तो वी नो द नंबर p, लैम्डा हमें निकालना है, ये डायमीटर तो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर कर लेंगे, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरोमीटर से मेजर करना है, तो लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा, देन लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, dm+p होल स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4pr, ये लैम्डा का फॉर्मूला होगा, सिंपल। ठीक है, तो लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेयर dm+p is the diameter of m+pth dark fringe, dm diameter of mth dark fringe। ऐसे 4pr है, p तो नंबर है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लैम्डा आ जाएगा इससे। सोडियम लाइट लेंगे तो लैम्डा होगा 6893, यस, सोडियम लाइट के लिए लैम्डा होता है 6893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मतलब ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, और अगर सोडियम लाइट यूज किया है तो यही आना चाहिए 6893 एंगस्ट्रॉम।
एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। सपोज dm प्लस p dm p r सब दे रखा है, आपसे पूछ लिया लैम्डा फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला में पुट करो, यूनिट है लैम्डा। ठीक है, अब एक लास्ट रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय न्यूटन रिंग। अब म्यू और निकालना है लिक्विड। अभी जो एयर फिल्म ली थी, एयर फिल्म की जगह हम लिक्विड फिल्म भी ले सकते हैं, है ना। दोनों के बीच में, लेंस और प्लेट के बीच में कोई लिक्विड के ड्रॉप डाल देंगे तो बीच में लिक्विड फिल्म बन जाएगी। तब ये फॉर्मूलाज थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। म्यू बीन में आ जाएगा, पाथ डिफरेंस में भी म्यू आएगा, पाथ डिफरेंस में म्यू आएगा तो सिमिलरली डायमीटर में भी म्यू आ जाएगा। फिर ऐसे ही करेंगे, दो डायमीटर लेंगे और दोनों को अलग अलग स्क्वायर करके एक दूसरे में से घटा देंगे और फिर हमारे पास रिमेनिंग म्यू बचेगा। म्यू के लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। फिर इसके बाद ट्रांसमिटेड रेस में भी न्यूटन्स रिंग को स्टडी करना है। वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे λ/2 एक्स्ट्रा आया था ना, बस वो λ/2 नहीं होगा, जैसे हमने थिन फिल्म में किया था ना। ट्रांसमिटेड में λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो पहले किसी को डाउट है तो बताओ, अभी तक जो पढ़ा है उसमें डाउट है तो बताओ। मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अदनान, ओके। सुमित कुमार, सुमित कुमार, रणबीर, मैम एक mth डार्क फ्रिंज में आप m = 0 1 2 लिए था। नहीं, m में तो 1 से स्टार्ट होता है m। नो मैम, आप वहाँ पे 0 से स्टार्ट किए। हाँ, कहाँ पे? mth डार्क फ्रिंज में। mth डार्क फ्रिंज 0 से स्टार्ट किया? यस मैम। कहाँ पे 0 से स्टार्ट किया? बैक करके देख लीजिए। यहाँ तो m1 से है। और एक बैक, और एक बैक। यस मैम है। ये तो m है ना? नीचे। ओह सॉरी सॉरी, ये 1 से होगा। डार्क फ्रिंज में m 1 से स्टार्ट होता है, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ठीक है, गुड, थैंक यू। और कुछ डाउट है रणबीर? मैम हमको एक फर्स्ट वाला टॉपिक में डाउट है। स्टार्टिंग में जो न्यूटन रिंग बताए थे ना, हाँ, तो उसमें लेंस में अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो रिफ्लेक्ट भी तो परपेंडिकुलर कैसे होगा फिर? ये परपेंडिकुलर जाएगा तो रिफ्लेक्ट भी परपेंडिकुलर ही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। मैम तो लेंस है तो वो कुछ तो डाइवर्स करेगा ना? लेंस है तो क्या करेगा? डाइवर्स करेगा ना अपना लाइट को, तो परपेंडिकुलर कैसे रिफ्लेक्ट फिर करेगा? लेंस पे अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है लाइट, उसके प्लेन पे, इस लेंस को ऐसे बनाया हुआ है ना कि इसका एक साइड बिल्कुल प्लेन है और दूसरा साइड वो है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, तो दूसरा साइड में तो डाइवर्स कर देगा ना लाइट को। नहीं, इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनाई इसीलिए जाती है कि वो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट करे। तो मैम जो ग्लास प्लेट दिया हुआ है तो उसमें भी तो कुछ डाइवर्स करेगा। ग्लास प्लेट से भी परपेंडिकुलर कैसे होगा?
ना, ये जो अरेंजमेंट बनाते हैं ना, हम्म, तो वो इसी तरह बनता है कि वो परपेंडिकुलर जाए। ओके मैम। हम्म। ओके रणबीर, यस अभी मैम। डिफेंस कुमार को कुछ पूछना है? सुमित कुमार, यस मैम। यस मैम मुझे ये पूछना था कि वो जो आर जो स्मॉल आर है ना, जब पीछे मैम आप एक स्लाइड जरा पीछे करिएगा व्हाइट बोर्ड का। हाँ बताओ पहले। मैम उसमें जहाँ आप टॉपिक स्टार्ट किए थे ना, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो हाँ, कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस है, लेकिन जो वो स्मॉल आर है वो किस चीज का रेडियस है मैम? वो जो फ्रिंज बनेगी ना, यस मैम। डार्क ब्राइट फ्रिंज बनती है, उनकी रेडियस है। तो मैम उसमें तो आर के नीचे एम भी लगा रखा है ना, R1 R2 R3 ऐसे होगा। पहली मैम और वो यस मैम। पहली फ्रिंज का रेडियस R1 हो गया, दूसरी फ्रिंज का R2, तीसरी फ्रिंज का R3 हो गया, स्मॉल आर। और जो कैपिटल आर है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो लेंस का, वो तो फिक्स है। और ये जो मैम और स्मॉल जो आर आप है, टी है थिकनेस, वो थिकनेस किस चीज का है? वो प्लानो कन्वेक्स लेंस का थिकनेस है या फिर वो मीडियम का थिकनेस है जो दोनों लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में है? टी, यस मैम। हाँ टी फिल्म का थिकनेस है, जो एयर फिल्म है ना। यस मैम, मतलब जो लेंस और ग्लास प्लेट के बीच का जो मतलब मीडियम है, या तो वो एयर हो या तो वो डिफरेंट कोई लिक्विड हो, तो उसका थिकनेस है ना? उसका थिकनेस है, इसीलिए टी वेरी करता है, टी अलग अलग है हर जगह। मैम और एक और चीज जो आप वहां पे लिखे थे, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल Qn इक्वल टू NQ डैश इज इक्वल टू SN इंटू NO, ये कैसे हुआ मैम? ये देखो, ये ज्योमेट्री से है। जैसे ये आपने पढ़ा होगा 11th में, सर्कल के लिए टूल। यस मैम। ये हाँ, ये जैसे ये SN, ये SN इंटू NO, ये देखो पूरा डायमीटर इसने कवर कर लिया। यस मैम। ऐसे इधर QN प्लस NQ प्राइम, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है QN प्लस NQ प्राइम, ये इक्वल होता है SN प्लस NO, SN इंटू N। ये अगर ये वाली लाइन को उठा के इधर ले जाओ, ये वाली लाइन सपोज ये होती, तो भी ये होता, ये मान लो Q होता, ये N होता, ये Q प्राइम होता, तो ये तो सेम ही होता ना। सपोज SN इंटू NO इक्वल्स टू QN इंटू NQ प्राइम। ये तो रेडियस हमने 4 रेडियस ड्रॉ कर दी, दो रेडियस का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये एक थ्योरम है 11th मैम 12th। वो जो स्मॉल आर है वो भी मतलब वो जो लेंस है उसका रेडियस है, इसीलिए हम लोग मतलब ज्योमेट्री ला अप्लाई कर पाए ना? नहीं, स्मॉल आर उसका रेडियस थोड़ी है, कैपिटल आर है रेडियस तो लेंस का। स्मॉल आर तो ये जो यहाँ पे फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे एक गोल गोल फ्रिंज बनेगी। हाँ यस मैम। यस मैम। ओके। टी जो है ना थिकनेस, यस मैम। टी थिकनेस की जो फिल्म है, वहां पे ये जो कर्व बनेगा उसकी रेडियस है स्मॉल आर। ओके मैम। इसलिए स्मॉल आर के नीचे एन ये लगा दिया ना, 1 2 3 4, क्योंकि अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये रेडियस छोटी होगी, कॉर्नर पे है रेडियस बड़ी होगी। यस मैम। स्मॉल आर रेडियस। ओके, थैंक्स मैम। ओके ओके सुमित। दीपक कुमार, मैम वो ज्योमेट्री वाला मतलब कौन सा थ्योरम है जो आप लगाए हैं? आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना,
नहीं मैम, ऐसा कुछ तो प्रूफ तो हो ही नहीं रहा है। अब ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है ना। नहीं मैम, ट्राई तो किए, प्रूफ है, हो ही नहीं रहा है प्रूफ। आप गूगल पे सर्च कियो? नहीं, गूगल पे सर्च तो नहीं किए। अभी थोड़ा सा सर्च करो, फिर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके मैम। कि थ्योरम प्रूफ करना आधा घंटा लग जाएगा ना। मैथमेटिकल जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, और भी तो कितनी सारी थ्योरम्स है ना, वो एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, वो सारी थ्योरम्स ही होती है। ऐसे ये भी है, जैसे ट्रायंगल में भी तो होता है ना, वो ट्रायंगल का ये मिड पार्ट, फिर उसको से मिला देते हैं तो 2/3 इक्वल्स टू ये 1/, ये 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। ये भी तो एक थ्योरम है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके ऐसे मिड से लाइन खींचते हैं, और सेंटर से अगर तीनों कॉर्नर को मिला दे तो ऊपर वाला पार्ट 2/3 होता है पूरी लेंथ का, ये 1/3 होता है। ऐसे ही ये भी एक थ्योरम है। अच्छा सुधाकर, मैम स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो सकता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने बहुत ज्यादा लिया है, और कैपिटल आर हमेशा बहुत बड़ा होगा स्मॉल आर से। ओके मैम। ऋषुराज, मैम वो जो मल्टीप्लिकेशन है मैम 12th में पावर ऑफ सर्कल पे भी पढ़े थे, तो वो है क्या? क्या वापस बताइए? मैम पावर ऑफ सर्कल मैम पढ़े थे 12th में मैम। हाँ जैसे मुझे भी अच्छे से याद नहीं है ना 12th की चीजें, ये अब उसी में मैम ये मल्टीप्लिकेशन आता था मैम। हाँ तो वेरी गुड। तो आप मुझे ना ये थ्योरम अगर आपको याद है तो थोड़ा सा मुझे लिख के आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है तो सारे स्टूडेंट को हम फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है ऋषु, थैंक यू। मनीषा कुमारी, मैम। यस मैम सिद्धार्थ बोल रहे, गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये थ्योरम तो करते प्रूफ हो जा रहा करते सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। प्रूफ हो रहा है? हाँ SQN और ONQ में सिमिलैरिटी है मैम, तो उसी से प्रूफ हो जा रहा। एक मिनट वापस बताओ। ट्रायंगल SQN, ये ट्रायंगल, हाँ, और OQN। OQN हाँ ये तो सिमिलर है मैम। कैसे? हाँ कैसे बताओ? एक 90-90 है, ये एंगल 90-90 है। हाँ, और मैम एंगल QON और एंगल SQN दोनों करते इक्वल होगा। एंगल QON, हाँ, और एंगल NQS। NQS ये वाला, हाँ ये इक्वल होगा। हाँ मैम, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है हाँ और ये भी थीटा है, हाँ। तो ये दोनों कैसे थीटा हुए? नहीं मैम, एंगल NQS को अगर थीटा मान रहे हैं, NQO को थीटा मान रहे हैं अगर, NQO को, हाँ, तो एंगल उधर में जो बड़ा वाला ट्रायंगल, तो एंगल वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90। ये 90 माइनस थीटा होगा ये वाला। हाँ, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल है बड़े वो वाले 90 माइनस थीटा होगा मैम, क्योंकि डायमीटर है ना ये ON, SO डायमीटर है, तो ये एंगल 90 होगा ना, वो पूरा एंगल OQS, हाँ OQS। अच्छा ये हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। हाँ अच्छा तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। हाँ ठीक है, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा है।
तो सिमिलर हो गया ना ट्रायंगल। हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो उसी में हाँ हो जाएगा मैम, रेशियो साइड का रेशियो। रेशियो में इक्वल हो जाएगा। रेशियो हाँ आया समझ में? दीपक कुमार ट्रायंगल तीनों एंगल दोनों के बराबर है, तो फिर वो आर्म्स का रेशियो लेंगे तो उससे आ जाएगा ये रेशियो। मैम यस मैम वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ वाला है मैम, उसमें अगर हम लोग आप जैसे सेकंड और फिफ्थ वाला डायमीटर को लिए तो मैम किसी भी दो के बीच रिलेशन इतना ही आएगा हमेशा? हाँ हमेशा सेकंड फिफ्थ या कुछ भी, मतलब हमने तभी तो जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, m और m+p, अब वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, और मैम वो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है मैम, उसमें ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे इंक्लाइन क्यों है? हाँ जिससे वो रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाए, परपेंडिकुलर जाने के लिए। हाँ हाँ। अच्छा, और मैम एक चीज और मैम, जैसे आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो वेरी मच ग्रेटर देन पी है, तो मैम ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं किए? अच्छा ये मल्टीप्लाई वाला? यस मैम। मल्टीप्लाई में तो देखो बहुत फर्क पड़ेगा ना, जैसे 5 - 0.001 करते हैं तो उसको तो n = 5 लिख सकते हो, 5 में से थोड़ा सा घटा दिया। अब 5 × 0.001 करते हो तो बहुत फर्क पड़ जाएगा ना, 005 हो गया। यस मल्टीप्लाई वाला नेगलेक्ट, तो मैम मल्टीप्लाई को कभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे? ऑब्वियसली अभी बताया ना आपको एग्जांपल से, सिर्फ माइनस वाला कर सकते हैं। अब 1000 में से आपने 1 घटा दिया या 0.5 घटा दिया तो 99.5 हो गया, वो तो 1000 के बराबर ही है ना। अब 1000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पैसे एकदम आधे हो गए, 500 ही रह गए, है ना। तो घटाना और मल्टीप्लाई दोनों बहुत अलग अलग चीजें। छोटी सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी जो क्वांटिटी इनिशियली थी वो बहुत छोटी हो जाएगी, घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए अंकित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल। मैम ये रेडियस और डायमीटर और ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस में आप Sn का वैल्यू 2r - t कैसे लिए? अच्छा देखो ये तो डायमीटर है, सॉरी एसओ डायमीटर है ना, रेडियस है r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, और ये जो इतनी थिकनेस है वो t है, ये t लिखा हुआ है, तो 2r में से ये t हटा देना तो खाली Sn आ गया ना, Sn आ गया, 2r में से t हटा दिया। ठीक है अंकित, डायमीटर में से वो थिकनेस घटा दी, वो जो हमने लिया है ON वो है T है, वो ON T है, तो SO - NO किया तो Sn आ गया। ठीक है, नेहा पॉल, नेहा पॉल को कुछ पूछना है? नो मैम। सुमित सिंह, मैम जब सोर्स एक है तो अलग अलग डायमीटर्स का अलग अलग वेवलेंथ कैसे होगा? नहीं वेवलेंथ तो एक ही होगा। नहीं जैसे डायमीटर का आखिरी में इक्वेशन लिखे है ना, हाँ तो उसमें तो जैसे अलग, हमेशा एक आएगा, तो जो डिफरेंस मैडम है वो ना एक आएगा, मतलब अलग अलग में जैसे इक्वेशन जो ऊपर है 7 और 8 इक्वेशन, हाँ
उसमें जैसे अगर डायमीटर किसी तरीके से अगर फाइंड कर ले तो वेवलेंथ तो अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर तो अलग अलग है। 7th और 8th इक्वेशन। सेवन। हाँ, तो ये m आपने बोल रहे हो कि लैम्डा तो आपको पता है r कांस्टेंट है, तो m है तो डायमीटर तो सबका अलग अलग होगा ना। मान लो थर्ड फ्रिंज है तो उसका डायमीटर कुछ होगा, फिफ्थ है तो उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। अच्छा डायमीटर सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ देखो m मल्टीप्लाई में भी तो है ना, डायमीटर ज्यादा होगा m से डिवाइड करेंगे। 4 लैम्डा r कांस्टेंट रहेगा हमेशा, dm स्क्वायर बाय m करोगे 4 लैम्डा r कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा सोर्स तो एक ही है तो लैम्डा तो एक ही होना है, लेंस भी हमारा एक ही है तो r भी एक ही होना है, 4 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, 4 लैम्डा r कांस्टेंट रहेगा, अलग अलग m के लिए dm अलग अलग होगा। ओके मैम। और बताइए, विश्वकर्मा, जयदेव विश्वकर्मा। हेलो यस गुड मॉर्निंग मैम। बोल रहे हैं कि मैम वो लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन भी आएगा मैम। क्या वापस बोलो? टेस्ट में लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन भी आएगा। माय गॉड, आप मुझसे वो पूछो ना जो मैं पढ़ाती हूँ, अब मुझे क्या पता किसी टीचर ने क्या पढ़ाया है। अब लाप्लास पॉइसन इक्वेशन अगर आपको पढ़ा दी, अब तो वो पूछो ना। बोल रहे थे जहाँ तक पढ़ा है वहां तक लेंगे, और आप हाँ तो ऑब्वियसली जहां तक पढ़ा है वहां तक देंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए ना क्लास में क्या पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है। अब क्लास में रहते ही नहीं हो तो पता भी तो नहीं वो रहता। सब तो 4th मॉड्यूल में है मैम, वो सब तो 4th मॉड्यूल में है। तो 4th मॉड्यूल में पढ़ाया है क्या? यस मैम। जो पढ़ाया है वो आएगा, देखो हम सिर्फ अपना बताते हैं, बाकी का हमें नहीं पता। हमने जितना पढ़ाया है उसमें से आएगा, बाकी कुछ पूछना है तो जो टीचर पढ़ा रहा है उन्हीं से पूछिए, ठीक है ना, कि वही बता पाएंगे, हमें क्या पता। बताओ ठीक है। सतीश, ओके। दीपक कुमार हो गया। सिद्धार्थ शर्मा भी हो गए शायद। ओके, सो आई थिंक टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड। अगली क्लास में हम इसी न्यूटन रिंग में जो चीजें बची हुई है वो सब करेंगे, ठीक है। हेलो मैम, एक डाउट है मैम हाँ सतीश बताइए। कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस डिटरमाइन कर सकते हैं? टोटल नंबर? हाँ, टोटल नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ यस श्योर, डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया तक ही डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके बाद तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आप काउंट कर सकते हो वेरिएबल माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख के। तो मैम इसके लिए कोई फॉर्मूला, ये कोई डेरिवेशन काउंट करने के लिए? हाँ, या फिर नंबर ऑफ डार्क और फ्रिंजेस डिटरमाइन करने के लिए? फॉर्मूला तो ये जो गिवन फॉर्मूलाज है ना, उन्हीं से आप निकाल सकते हो, बट वैसे आई डोंट थिंक सो कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला होगा, वैसे डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। और मैम जो डार्क फ्रिंजेस है उसका इंटेंसिटीज जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा जाएंगे, या इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा? डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी वेरी करेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था ना पिछली बार थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट में कि जैसे जैसे आगे जाते हैं इंटेंसिटी कम होता जाता है, कम होती जाती है, है ना, बिकॉज वहाँ एम्पलीट्यूड डिवीजन से ही आगे बढ़ते हैं, तो इंटेंसिटी कम होता जाएगा। थैंक यू मैम। साहिल। हेलो मैम। हाँ साहिल, हेलो
मैम एक बात और था कि ये जैसे मैम हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट रेस का हम लोग ये देख रहे हैं डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये स्क्रीन पे नहीं आएगा मैम, सीधा माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही टाइनी होती है, तो ऐसे नहीं दिखेगा। तो स्क्रीन पे हम लोग इसको नहीं ले सकते? नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं दिखाई देगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, साहिल बोल रहा हूँ। हाँ साहिल। मैम बोल रहे थे ना कि अभी वाला जो न्यूटन रिंग तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो और पर वेडनेसडे को फिजिक्स रहता है, तो वेडनेसडे से तो एग्जाम स्टार्ट है, तो न्यूटन रिंग तो पूरा नहीं आ पाएगा फिर। हाँ, जितना आज तक पढ़ाया है लैम्डा तक, यस मैम। यहाँ तक आएगा। ओके मैम। और मैम बोल रहे थे कि मॉड्यूल 1 में लास्ट का पार्ट थोड़ा बाकी था, जैसे फोर्स्ड ऑक्सीलरेशन हार्मोनिक में बाकी था थोड़ा सा, तो वो तो नहीं हुआ था फिर। हाँ, वो नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है मैम, थैंक यू। इंद्रानी पॉल। ओके, सो आई थिंक वी शुड, इंद्रानी पॉल को कुछ पूछना है? यस मैम, गुड आफ्टरनून। मुझे पूछना था कि मैम आप वो गूगल क्लासरूम बना दीजिएगा ना? हाँ हाँ, अभी बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। ठीक है, चलो आज के नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पे ही सेंड करेंगे, ठीक है? न्यूटन्स रिंग के नोट्स। So now I am going to end this meeting, and meeting for all.